So good morning, all of you, and welcome back to the last week of this year. Okay, that's one. And the second is that I've tried to implement. I think a little bit of echo is there. चलो, I think अब echo खत्म हो जाएगा. हाँ, so I tried to implement that idea कि class के पहले एक छोटा सा question हो जाए. It was some kind of a warm-up question, you can say, and that is why is it that sometimes, some time back rather, there were some severe cyclonic storms in California region and quite a few well-built houses. So कच्चा पक्का वाला मकान नहीं जैसे इंडिया में झुग्गी झुपड़ी वाला टाइप ना. Well-built houses had their roofs blown off, and what could be a reason? तो बहुत लोगों ने आंसर किया है. कुछ लोगों ने उसको शॉर्टकट में आंसर कर दिया कि इट्स बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, बट दैट डज नॉट एग्जैक्टली एक्सप्लेन दैट थिंग. आई मीन थोड़ा सा लिखते हैं एटलीस्ट. आई थिंक आई कुड ओनली सी अराउंड 8-9 of the answers. बाकी सबका देखो चेक करना मुश्किल है. Anusha has also just now answered. I mean, some have answered in short, and that is due to pressure difference. I agree, but वो कैसे हो रहा है वो explanation भी थोड़ा चाहिए था. So that's why if you look at the quality of answers, I mean, I think 2 answers were good. Bhavya and Garv. Baki log, obviously they were on the right track, and maybe the answers were too short, and that's why maybe I didn't say about the quality of answers. But yes, the ones that I just told were slightly better ones. Okay, they were correct answers. Well, Aryant has now just given an answer in the chat mode right now, which is also a correct one. Path, Bansal, Rishav, Aryant, good morning. Bernoulli's principal. ओम सेज कि सर ये सुबह मत क्या करो. क्वेश्चन ना करें, बट तुम लोगों में से सजेशन आया था, है ना, कि एक आध क्वेश्चन दे दो सो दैट इट बिकम्स सम काइंड ऑफ अ वार्म अप. आई मीन, ठीक है ना. चलो, एनीवे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट Bernoulli's theorem, and we had discussed a little bit one more idea on velocity flux before we move ahead, and that is, it's a pretty obvious thing, but then still a little bit of discussion. I mean, and that is, let us say एक वेसल है, ठीक है, और ऐसे रखा हुआ है, और लेट्स से इट इज फिल्ड टिल द ब्रिम, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे कुछ हाइट पे वो करता हूं, लेट्स से at some depth y, or maybe from the floor, I mean, at y height, there is a small hole, so the water will come out, and there will be certain range also. Okay. I think by now you must have already guessed a little bit. Garv says good morning, but there is some kind of a headphone symbol with that. Anything wanted to indicate in that? Aryant said air moving at high pressure outside make low pressure. Yeah, Aryant, you're right. चलो, ठीक है. तो carrying on, यहाँ का जो range होगा वो कितना होगा? Now that will obviously depend on the velocity and the time of flight. So the range will be equal to velocity, which is equal to under root of 2g. Now if the height is suppose h, तो depth क्या होगा? h minus y. तो हमने पढ़ा था ना velocity of flux 2gh होता है, तो h के जगह h minus y. तो 2gh minus y into the time of flight will be what? Will be dependent only on this y. So the time of flight will be equal to under root of 2y by g. Under root of 2y by g. यानी ultimately range आ गया equal to under root of 2g y into h minus y. तो r max कब होगा? r max तब होगा जब when y is equal to h by 2. कैसे? मैं कुछ नहीं, इसको differentiate करेंगे, so I think you will get the answer. So that you can do yourself. So I'm not doing it. ठीक है ना? Yeah. But what let's say रूट के अंदर 4 आएगा ना, g तो नहीं आएगा. हाँ, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा. Actually 2 बाहर होगा. सर g भी नहीं आएगा. ओ अच्छा, g भी नहीं आएगा. ठीक. Then it 2 into y into h minus y, and therefore the r max will happen when y is equal to h by 2. So I think that's the easy stuff that you can do yourself. अच्छा, I have few queries now. Number one is, what let's say
if this is the case, suppose this is 2H, okay, and this is suppose H. What is the maximum range? So this has been kept at the corner of some kind of a building, and what is the maximum range? Okay, whatever. What is the maximum range? What if I reverse it? What if I reverse it? Means this is 2H suppose, and this is H. Okay, or R max. Fine. So what would be the R max in each case? Ariyant is just given an answer कि R max के लिए मैं H/2 करना चाहिए. I think that's what I was saying. ठीक है ना? कि वो तो मैंने G तो खैर गलती से लिखा था. But R max के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, बिल्कुल mid point. That's what is the story. चलो ठीक है. Go ahead. Now find out the R max in each case. फर्स्ट केस में R max कितना होगा? I mean, why first case? Second case में भी. तो फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है कि एक में वेसल में पानी हाइट h का है और वेसल हैज बीन केप्ट एट सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एट 2h हाइट, और दूसरे में उल्टा है, पानी का हाइट 2h है और प्लेटफॉर्म का हाइट h है. तो दैट इज द डिफरेंस है. ठीक है. तो पहले वाले में और दूसरे वाले में रेंज में क्या अंतर होगा? सर कुछ फ्रिक्शन में दिया है, कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऐसा कुछ उधर. और क्या चाहिए? फिर पीछे जाएगा ना, तो फ्रिक्शन भी है उधर, मतलब उन दोनों के बीच में. वो सब नहीं है, वो तो स्टेशनरी है, दैट इज फ्रिक्शन सफिशिएंट है. रेंज पूछा जा रहा है, वो भी एट द इनिशियल इंस्टेंट. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो रेंज तो बदलता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो रेंज तो बदलता जाएगा. तो आर मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट्स द क्वेश्चन. Okay, Ariyant has given answer of H. Shreyashi says 5H. तो देखो, मैं एक चीज ना प्लॉट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको रियलाइज करो. सपोज अगर हाइट h है और अगर मैं प्लॉट करता हूं कि भाई किसी भी y पे रेंज क्या है, तो अभी हमने देखा था कि रेंज आया था 2 इंटू अंडर रूट ऑफ y इंटू एच माइनस वाई, ये आया था. यानी अगर मैं रेंज वर्सेस y को प्लॉट करता हूं तो द प्लॉट वुड बी समवॉट लाइक दिस, है ना? एंड द रेंज इज मैक्सिमम at y is equal to h by 2 and is 0 at h and is also 0 at y is equal to 0. तो y is equal to 0 और y is equal to h पे जो रेंज होगा वो 0 होगा. Now what is the logic? Logic is that अगर मान लो एकदम बेस पे कर दो तो y is equal to 0. बेस पे सबसे तेजी से पानी निकलेगा, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है. वो जैसे ही निकलता है वो तुरंत टेबल को टच कर जाएगा, तो रेंज 0 हो जाएगा. अच्छा, जहां तक यहाँ की बात है, बिल्कुल टॉप वाला क्वार्टर, अगर टॉप लेवल का देखते हो तो उसपे तो रेंज ही नहीं, वेलोसिटी नहीं होगा. तो क्या होगा ना, वो जस्ट ट्रिकल करके ड्रॉप बाय ड्रॉप या जो भी होगा, मतलब व्हाटएवर, इट विल जस्ट ट्रिकल एंड फॉल alongside of the vessel. So in both the cases the range is 0. Now that's what the range is mathematically, है ना? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं. तो कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं. 5h, √5h,
h/2 4h 5h h h/2 5h इस तरीके से आ रहा है। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक चीज देखा होगा कि इज दैट मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है और दोनों तरफ अगर जाओगे, इधर जाओ तो रेंज घटता जाता है और सिमेट्रिकली घटता जाता है। अच्छा इसमें क्या होगा ना, देखो अगर मान लो मैं यहां से यहां तक ले लेता हूं तो जो मैक्सिमम रेंज होगा तब होगा जब यहाँ पे 3h/2 पे होगा। ये 2h और ये h है, तो मैक्सिमम रेंज तब होगा जब ये 3h/2 पे। लेकिन वहां तो पानी है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे तो हम होल नहीं बना सकते। तो अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो इन दैट केस अब ऊपर चलो यहीं पे रखना पड़ेगा होल। So therefore for maximum range I have to put the hole here so that the range will be maximum. ये ड्राइंग हटा देता हूँ। तो यानी अब जो y है ना, वो कितना हो जाएगा ना, जो रेंज होगा वो होगा √2 into √y। y बोलते क्या होगा ना, y बोलते हो गया 2h into h minus y। अब h बोलते क्या होगा 3h है ना, 3h minus 2h, यानी 3h minus 2h, so that would be the maximum range and that is 2√2h। ये तो 3h minus h करके h आ गया तो h स्क्वायर बाहर आ गया 2√2। तो पहले वाले केस में अरे इसमें डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करेंगे? और डिफरेंशिएट करो तो भी देखो वही रिजल्ट आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। लॉजिक में यही कर रहा हूं कि देखो चलो मान लो मैं यहाँ पे होल बनाता हूँ है ना, होल अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो कि रेंज तो 0 आएगा, तो जैसे जैसे होल को नीचे करते जाओगे तो रेंज बढ़ेगा, नो डाउट। बट द थिंग इज दैट इसके बाद तो तुम नीचे जा ही नहीं पा रहे हो ना। तो अगर मान लो पूरा 3h हाइट का वेसल होता, पूरा 3h हाइट का वेसल होता तो मैं y = 3h/2 पे होल बनाता, लेकिन वहां पे होल परमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी है ही नहीं वहां पे। तो देयरफॉर अगर तुम इस पूरे को पानी मान लो तो इस हाइट पे होल बनाओ तो इन दैट केस बेस्ट सिचुएशन आएगा, मतलब बेस्ट इन द सेंस की रेंज मैक्सिमम आए। लेकिन इस हाइट पे होल बना नहीं पाओगे तो इससे ऊपर तो यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो अगर एक बार यहाँ पे बनाओ इन दैट केस टाइम ऑफ फ्लाइट तो √2h/g होता है और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगा ना, √2gh है ना। तो खुद ही कैलकुलेट कर लो, यहीं पे तुमको बनाना पड़ेगा होल। तभी देखो यहाँ पे फर्क हो गया, यहाँ पे अब हो जाएगा 3h/2 पे। ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे h है तो h/2 यानी यहाँ पे मेरे पास मौका है कि मैं पूरे हाइट के बिल्कुल सेंटर पे एक होल बना सकता हूँ है ना। तो यानी इस केस में ये हो जाएगा 3h/2 क्योंकि वहां पे वो है होल बनाने का मौका। तो देयरफॉर अब क्या होगा ना, अब रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें भी रेंज नहीं, ये हो गया रेंज मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा √2 into h y मतलब 3h/2 into obviously 3h minus 3h/2। तो 3h/2 into ये भी 3h/2 होगा तो 2 बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो गया, यानी r max क्या हो गया ना 3h आ गया। तो एक का आ गया 2√2h और एक का आ गया 3h। देहा में आस्क्ड कि इसको डिफरेंशिएट करके करना है तो कैसे करेंगे ना, डू द सेम थिंग, नो इश्यूज है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट इन दिस केस टेक दिस एज y, तो इन दैट केस √2gy वेलोसिटी और ये हो जाएगा जो है हॉरिजॉन्टल निकलेंगे तो ये हो जाएगा 3h minus y, यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा ना 2 into 3h minus y by g है ना। √2h/g होता है रेंज, अगर मान लो हॉरिजॉन्टली फेंको तो है ना। अगर हॉरिजॉन्टली h हाइट से फेंको तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है √2h/g, तो h की जगह 3h minus y कर लो और ये 2gy है। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें पता क्या आएगा देखना 3h/2। अब 3h/2 पे तो तुम रख ही नहीं पाओगे है नहीं, तो 3h/2 भी यहाँ पे रख पाएंगे, यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। तो अब अल्टरनेटिव क्या है ना, उससे हटो, नीचे तो हटने कोई स्कोप नहीं, ऊपर हटो और कोशिश करो कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बने। तो कहां पे बनेगा ना, एज पे बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक। डिफरेंशिएट करके भी वही आएगा, पर चक्कर ये कि वो वैल्यू तुम एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे क्योंकि वहां पे होल तुम बना नहीं पाओगे। मतलब मैं इस क्वेश्चन के बाद, नीचे वाला तो इजी। चलो, सो दैट वाज अबाउट अ डिस्कशन ऑन रेंज एंड ऑल। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और वो है
सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, दिस इज सिलेंडर, और मैंने क्या किया, इसको एक स्लाइस बनाया, कट किया ऐसे, यूं सीधा वर्टिकल कट। कुछ नहीं, मान लो एक प्लास्टिक का सिलेंडर है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत ना हो कि चाकू से कटे ही ना, तो उतना वो लेवल का वो समझ लो, प्लास्टिक का बाल्टी है, और मैंने चाकू से ऊपर से नीचे तक एक वो कर दिया, है ना, और उसके ठीक बगल में एक और कर दिया, यानी एक बार और चाकू से ये ले लो, हो गया। अब एक काम करो, ये तो पूरा पानी से भर दो, है ना। तो क्वेश्चन इज फाइंड इनिशियल बैक थ्रस्ट। ये जो स्लॉट बना है ना दो, उसमें से जो बीच का जो प्लास्टिक है उसको मैंने फेंक दिया, यानी बकेट इज नाउ लाइक, आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ, तो यहीं से पानी पूरा निकले, ठीक है। तो एज यूजुअल इसका हाइट h है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो दिया हुआ है एज b, ठीक है। गो अहेड एंड फाइंड आउट द बैक थ्रस्ट। अच्छा, इनिशियल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा तो ऑब्वियसली इसका वो कम होता जाएगा, है ना। तो देयरफॉर नेचुरली बैक थ्रस्ट का वैल्यू भी कम होता जाएगा, है नहीं, इसलिए इनिशियल का पूछा है। मतलब बैक थ्रस्ट तो कंटिन्यूअसली आएगा, बट थोड़ी देर बाद जैसे जैसे हाइट कम होता जाएगा तो बैक थ्रस्ट का वैल्यू भी कम होता जाएगा। चलो, go ahead and find out the initial back thrust. Answer I have finally, and that is a little different. That is from Ohm, and that is rho g p h cube force. देखो, रो जी बी एच क्यूब में एक प्रॉब्लम है, और डायमेंशनली एक बार चेक कर लो, है ना। ठीक है, चल एनीवे, नाउ देयर आर मोर आंसर्स कमिंग अप। किसी के 2/3 आया, किसी का 1/2 है, किसी का 1 है, बट मोस्टली आंसर आ रहा है रो जी बी एच स्क्वायर, तो आ ही रहा है, साथ में अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं, किसी का हाफ, 1/3, एक 2 भी है, नहीं सॉरी 2/3 भी है श्रेयसी के, एंड सो ऑन। सो लाइक नाउ देयर आर मोर आंसर्स। चलो लेट मी स्टार्ट। पहली बात तो एक काम करते हैं, वाई डेप्थ पे आ जाता हूं और एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं जिसका सपोज डेप्थ है dy। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी रिफ्लक्स, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gy, और जो बैक थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, a v स्क्वायर रो। तो a बोलते क्या होगा, b dy, b dy is the area into v square is 2gy into rho, that is the back thrust। वैसे इसमें एक वॉल्यूम फ्लो रेट भी आता है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट से मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि किस हाइट से किस लेवल, कितना जल्दी से इसका हाइट घटता जा रहा है। That also can be found out, I mean, and maybe that could be further integrated to also find out when will this vessel become empty. So that is also another way of looking at it. ठीक है ना, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो लाइक F तो ये आ गया TF, तो टोटल इंटीग्रेशन करके फोर्स आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू y तो है ही है, तो y स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी b रो g h स्क्वायर, 0 से h। अगर मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना होगा, ठीक है ना, अगर मान लो मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना होगा तो क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो v डॉट विल बी व्हाट, है ना, तो v डॉट विल बी इक्वल टू b dy into root under 2gy, in the sense कि that like मान लो अगर इसका रेडियस r होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो ये आ जाएगा a इंटू वी का इंटीग्रेशन 0 to h, ये तो y टू द पावर हाफ है, तो y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 आ जाएगा, तो यानी 2b
by 3 under root of 2g y क्यूब कर दो या h क्यूब कर दो या 0 to y कर दो, ठीक है ना। एट एनी हाइट y, आई मीन एट एनी हाइट y, अभी तो फिलहाल इनिशियली तो खैर h है, तो इनिशियली तुम y की जगह h भी पुट कर सकते हो, है ना। बट अगर वैसे नहीं करोगे तो इन दैट केस दिस इज द रिजल्ट है। तो ये v डॉट है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअली पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू dy dt विद अ माइनस साइन, ठीक है। आई थिंक रेस्ट कैन नाउ फॉलो। इसको भी अगर इंटीग्रेट करोगे तो यू कैन इवन गेट द टाइम फॉर दिस वेसल slowly emptying out. So that's also another way of looking at it. चलो anyway, b rho g h square, आदित्य मुझे लगता है तुमने आंसर सही निकाला, बट शायद लिखने में वो h स्क्वायर की जगह g स्क्वायर लिखा। चलो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, ठीक किया, ठीक है। So this is basically giving me a way of finding out when will this vessel empty, क्योंकि इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस पहले किया कि इस टाइप के क्वेश्चन में वेसल एम्प्टी का टाइम कैसे निकालना होता है, तो इस केस में वो भी हम निकाल सकते हैं। So that's an additional thing, ठीक है। Okay, one last bit of studies before I will go for some practical use, and that is, suppose मेरे पास एक इस तरीके से एक चीज है, first of all identify what it is, guess what is it, yeah, what is in your imagination regarding this। अच्छा, by the way, last वाला मैं बता देता हूँ यूटिलिटी फिर से, is that अगर क्वेश्चन आता है how will the vessel get emptied, तो उसके लिए मैंने फॉर्मुलेशन बना दिया पाई आर स्क्वायर a इंटू वी, वी मतलब dy dt जो नीचे आएगा, लेकिन माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि y कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग मोड में है, और जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो है b dy यानी एरिया, इसका एरिया इनटू वेलोसिटी व्हिच इज av, है ना। तो av, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा 0 से लेके y तक, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ पानी निकल रहा है, तो पूरा इंटीग्रेट किया तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। देन रेस्ट यू कैन डू। पंप है ओके, भव्य सेज बियर बॉटल, आर्यन सेज ये तो सिरिंज है पूरा एकदम ओके, वैक्सीन, पिचकारी, आदित्य है सेड वैक्सीन। देखो आजकल सबके दिमाग में जो है ना कोरोना ही चल रहा है ठीक है, तो चलो, इट कैन बी एनीथिंग, आई मीन, बट अगर इंजेक्शन इमेजिन कर रहे हो देन आई हैव समथिंग टू सजेस्ट, एंड दैट इज, आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव सीन एनिमल्स गेटिंग इंजेक्टेड, खास करके भैंस वैस को भी इंजेक्शन देते हैं, देखना, ठीक है ना। तो उसके तो इंजेक्शन का तरीका ही अलग होता है। ह्यूमन बींग्स होता है तो बड़े प्यार से ऐसे करके वो करते हैं और, है ना, फिर कुछ कुछ जैसे अगर छोटे बच्चे हुए तो थोड़ा बातें भी करेंगे, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, ये है, कौन सा स्कूल है, करते करते चुपके से बीच में इंजेक्शन डाल देंगे, इस तरीके से दैट इज डन, आई मीन। बट भैंसों को इंजेक्शन करते हुए, इंजेक्शन देते हुए कभी देखा है या नहीं, आई डोंट नो। देखना उसको पकड़ने का स्टाइल ही उल्टा है, ऐसे, इट्स नॉट लाइक दिस। सो द पिस्टन इज जनरली विद अ थंब, आई मीन, तो पिस्टन ऐसे करके देते हैं ह्यूमन बींग्स, और भैंसों में तो उल्टा होता है, ऐसे जैसे अटैक करने वाला सो लाइक दैट हैज टू बी डन क्विकली, क्योंकि जल्दी से नहीं करोगे तो इन दैट केस क्या है ना कि बाय द टाइम यू इंसर्ट द निडल एंड देन यू प्रेस द पिस्टन, इतने में तो भैंसों को पता चल जाता है, तो इट विल जंप एंड देन प्रोबब्ली किक आल्सो एंड सो ऑन व्हाटएवर, सो लाइक यू हैव टू बी नियर बाय आल्सो, ये दूर से तो होता नहीं है, पास से ही करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट वेरी क्विकली, लाइटनिंग क्विक, ऐसे टक पचा बाहर निकालो और दूर चले जाओ, so that is what is done. So now it will jump and all, but then hopefully by that time you are out of range, hopefully, ठीक है ना। So that is what is done. Anyway, इसमें एक क्वेश्चन है और एक ऑब्जर्वेशन भी है। देखो, अच्छा पिचकारी हम लोग जब खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि वो पानी लेके सैंपल करके ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन अच्छा पिचकारी ना प्रेस करके जितना पता चलता है उससे बेहतर मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है, इज दैट पिचकारी को पहले पानी से भर लो, ठीक है, और उसके बाद
उसको उल्टा मतलब इस तरीके से पकड़ लो, ऐसे whatever. ये देखो, इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है ना, थोड़ी देर पकड़ के रखो, बस कुछ नहीं करो, बस इसको यूं पकड़ लो ऐसे। अगर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं गिर रहा है, दैट मीन्स द पिस्टन इज गुड, तब इसका मतलब वो एयर टाइट है। क्योंकि अगर मान लो पिचकारी का बॉडी और पिचकारी के पिस्टन अगर टाइट फिटिंग नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर टाइट फिटिंग नहीं है, इन दैट केस पता है क्या होगा, यहां से हवा अंदर घुसता रहेगा और उससे क्या होगा देखना, यहां से पानी ड्रॉप आएगा। और अगर बिल्कुल एयर टाइट होगा तो हवा नहीं घुसेगा। इन दैट केस आई होप यू रिमेंबर दैट कैलकुलेशन दैट वी डिड, इन दैट केस मैक्सिमम 10 मीटर तक का तुम पिचकारी में पानी होल्ड कर सकते हो और पानी लीक नहीं करेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन सपोर्ट अ वाटर कॉलम ऑफ अराउंड 10 meters अप्रोक्सीमेट ऑफ कोर्स। तो देयरफॉर अच्छा, उसके बाद एक बार पिस्टन का टाइटनेस वाइटनेस वो सब भी चेक करना पड़ता है, तो देन यू प्रेस इट एंड लेट द वाटर कम आउट एंड ऑल। बट सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि उसको प्रेस कर मत करो। कई बार ना हम लोग सिर्फ प्रेस करके देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आ जाते हैं, फिर जब घर में लेके आते हैं तब देखते हैं लीकेज कर, तब दिक्कत होता है। इसलिए सबसे पहले लीकेज का टेस्ट होना चाहिए, सो दैट यू नो दैट यस द पिस्टन diameter and the inside diameter of the पिचकारी or whatever is matching up. So these are some practical observations. Anyway, मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज मैंने क्या किया, अच्छा इसके मतलब समझो, इसके मतलब अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो पानी बाहर नहीं आएगा जब तक मैं उसको प्रेस करके बाहर ना निकालूं, यही है ना। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट, सपोज यहाँ पे पानी है और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा वो स्मॉल है, इसका जो माउथ है, और यहाँ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है मतलब पूरे सिलेंडर का, दैट इज सपोज कैपिटल है, मैंने कुछ फोर्स लगाया हुआ है। सो क्वेश्चन इज दैट अगर मान लो इसका लेंथ L है, पिचकारी का अगर लेंथ L है, क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू एम्प्टी आउट द पिस्टन। सो T रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द पिस्टन। पिस्टन तो नहीं कहना चाहिए, empty with the help of the piston, but maybe I can call this पिचकारी, है ना। ठीक है, चलो go ahead. To take a point out here, which is 1, and the other will be here, which is 2. So these are the 2 points that we are going to select. तो point 1 पे प्रेशर क्या होगा ना, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0 प्लस F by A. Now that is important क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक से, प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। तो इस पिस्टन का जो वेलोसिटी है वो लेट से कैपिटल V है, और यहाँ से जो पानी का जेट है वो सब स्मॉल v है, तो आई कैन राइट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V है, यानी स्मॉल v को लिख सकता हूँ कैपिटल V कैपिटल A बाय स्मॉल, दैट इज व्हाट वी कैन डू। अच्छा, रो जी एच वाला टर्म जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसी लेवल पे ले लो तो रो जी एच वाला टर्म खत्म हो जाता है। तो अब बचा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा फिर ना, वहां पे भी प्रेशर P0 प्लस F बाय A तो खत्म है, वो तो उतना ही है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर। तो V स्क्वायर को ये लिख लो कैपिटल V स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर बाय A स्क्वायर। एक्चुअली सी यू टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इस बार पिस्टन का ही वेलोसिटी चाहिए मुझे, इसलिए मैं कैपिटल V को इंटैक्ट रखना चाहता हूं, बिकॉज़ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। हो गया, और रो जी एच वाला टर्म तो एज यूजुअल 0 होगा, तो देखो यहाँ पे P0 कैंसिल हो जाता है और V हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F 2F by A स्क्वायर A क्यूब, है ना। नहीं, A इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। I think that is what we are getting finally. ठीक है, so that is the velocity. बस अब टाइम आ जाएगा, टाइम कैसे निकलेगा,
time is equal to L by capital V. That's it. Capital V तो आ चुका है. You can just put the value and you will be able to get the answer. एक बार जरा वो check कर लो कि एक रो वाला term भी आएगा. I think है ना, एक रो वाला term भी आएगा. है ना, 2f इधर हो गया, रो एक आएगा. ठीक. Fine. चलो. So that was about your time. अब हम उस प्रैक्टिकल बात करेंगे जो मैं थोड़ी देर पहले बात करने वाला था. इस दैट कि देखो ये जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है कैलिफोर्निया वाला, कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. सो फ्रॉम दैट आई कैन गेस दैट यू ऑलरेडी गॉट थ्रू द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, और मे बी यू कंप्लीटेड द चैप्टर, और मे बी ऑलरेडी रेड द चैप्टर. इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नो हार्म इन दैट. उसी कंटेक्स्ट में एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूं. दैट इज, सपोज मैं एक शीट ऑफ पेपर है, पतला सा शीट है, मैं इसको मिडिल पे ना रख के इसको थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं यहां पे. ठीक है. एंड देन सपोज आई ब्लो करके ब्लो करता हूं, यानी ऐसे रख के ब्लो नहीं करूंगा और ना ही ऐसे रख के ब्लो करूंगा, तब तो सामने की तरफ झुक गया, वो एक अलग है. मैं इसको रखूंगा ऐसे यूं साइड साइड में, और फिर सेंटर ऑफ द फेस पे ना रख के मैं लिप्स के थोड़ा सा कॉर्नर पे रखूंगा इसको ऐसे, and then I blow. So the question in this case is, what is going to happen? ठीक है ना? Just give me a few seconds. So basically I was wanting to ask a question. Let's see. I mean, अगर हो सकता है तो अब घर से ले रहा हूं तो इसका मतलब ये फ्रीज हो जाएगा अब तो मेरा. Can't help it. Let me see what happens. Now I've launched a poll, I mean, and as usual, the video has frozen, I mean, but चलो कोई बात नहीं. At least you can start answering the question now. चलो 41 में से अभी तक सिर्फ ठंड में लोगों ने अपने कंबल में से हाथ बाहर निकाले हैं 16 जने. Okay, now the number is crossing 20, so more than half of them have answered now. चलो, I think if I look at the trend is on right track. पर तुम लोगों को ट्रेंड तो नहीं पता चल रहा होगा, मुझे तो ट्रेंड दिख रहा है. ठीक है ना? Okay, 34 have answered, I mean. So 7 have not answered. So 7 are still nicely in the quilt or some such thing, I don't know. So I'm ending the polling now. I'm ending the polling and I'm now sharing the result. वैसे शेयरिंग रिजल्ट करते हुए भी मेरा वीडियो फ्रीज हो जाता है, ये पता नहीं क्या अजीब सा, क्योंकि स्कूल में नहीं होता था. चलो, anyway, now let's look at it. First thing is, इस बार गुड साइन, एंड दैट इज सबसे ज्यादा आया हुआ है इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स ही करेक्ट आंसर है. आउटवर्ड्स भी क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव थॉट आउटवर्ड्स होगा, तो 13 आंसर आया हुआ है, एंड दैट्स नॉट करेक्ट. एंड नो मूवमेंट 6 वो भी करेक्ट नहीं है. तो अगर मैं ऑन द होल देखता हूं तो देयर आर लेस देन, मच लेस देन, इन फैक्ट मच लेस देन
the whole class if I look at, much less than 50% which have given the right answer. Chalo, ठीक है. Anyway, now let's start the discussion. The discussion is like this that गर्व says कि आपका hand raised है. हाँ, वो actually hand raised गलती से press हो गया. फिर मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से उसको नीचे कर, तो मैंने रहने दिया. चलो कोई बात. अच्छा, अभी इसको ना बेस्ट है कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट वे. ठीक है ना. तो मैं इस शीट को ऐसे साइड में रखूंगा. ठीक है ना. ठीक है, शीट को साइड में रखूंगा और उसके बाद मैं ब्लो करूंगा. और quite a few of you already know the results, so that's why they were good answers. Correct answers कई सारे थे. अब मैं इसको वो करना चाहता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट. So I think you are clearly seeing कि ये अंदर की तरफ आ रहा है. इनफैक्ट अगर मैं 2 यूज करूंगा ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, बड़ा रोमांटिक जैसे देखने में लगता है. इंग्लिश में रोमांटिक क्या है? फूंक मारना रोमांटिक हो जाता है. हाँ, वो तो ठीक है, बट जस्ट लुक एट द रिजल्ट, यू विल फील क्या कुछ रोमांटिक जैसी है. कुछ रोमांटिक लगा? यानी तो यानी what is happening is that if I look at the 2 sheets of paper, the ones I start blowing in between, तो ये ऐसे झुक जाता है. और अगर एक रखते हैं तो भी, यानी दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है, दैट इज अंदर की तरफ. Now what is the reasoning? Reasoning is that if I look at 2 points, अच्छा देखो, if I look at the region, I mean just outside my lips, I mean, or outside my mouth, तो यहाँ पे प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The moment I start blowing, तो वेलोसिटी बढ़ जाता है. तो अगर सेम लेवल पे एनालाइज करो तो देखो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच पे तो टर्म तो जरूरत नहीं पड़ता है, यानी वो हो गया कांस्टेंट. तो अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, इन दोनों का समेशन को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा? P घट जाता है. यानी द मोमेंट यू पुट द शीट्स लाइक दिस एंड यू ब्लो इन बिटवीन, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है. तो यानी ये जो शीट है उसके यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. So therefore this pressure is more, so there is more pressure on this side and that's how the sheet gets bent. और यही exactly phenomena होता है छतों में. अच्छा, now you might say कि आपने कैलिफोर्निया का नाम क्यों लिया क्वेश्चन? देखो, कैलिफोर्निया का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये चीज जनरली देखना, जैसे इंडिया में भी अभी रिसेंटली उड़ीसा के कोस्ट में, आंध्रा के कोस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आए थे और कुछ महीने पहले वेस्ट बंगाल में भी आए थे, अम्फान नाम के. अभी इसके रिसेंटली का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़े बड़े अजीब अजीब से नाम भी दे देते हैं, तो याद रखने मुश्किल हो जाता है. वेल, क्रिस सेड कि ब्लो तो सामने से करना था. नहीं, उसका रिजल्ट तो अलग हो गया. उसका रिजल्ट तो फिर वो एवी स्क्वायर रो भी इंक्लूड हो गया फिर, अब क्योंकि वहां पे फिर नॉर्मल प्रेशर नहीं आ रहा, वो फिर वो एवी स्क्वायर रो वाला अगर तुम सामने रखोगे ऐसे झुकाने के लिए तो वो अलग रीजन हो गया. ये क्या है कि यहाँ पे कोई डायरेक्टली हवा जाके हिट नहीं करता, हवा तो सामने से निकल गया, लेकिन वो जो सामने से निकल गया उसके चक्कर में प्रेशर ड्रॉप. दिस व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज. क्रिस, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड दैट. अच्छा, एनीवे, कमिंग टू दैट पॉइंट, हमें कि कैलिफोर्निया देखना थोड़ा सा ना कोल्ड रीजन में आता है. अगर तुम छत का ढलाई से करोगे, जैसे हम लोगों का छत होता है ढलाई से करते हैं, तो वो बहुत मजबूत होता है. उसमें जो है ना, अगर हवा ऊपर से ब्लो भी करे ना तो उतना ऐसे नहीं होता कि छत उड़ के चलता. लेकिन ये जो एरियाज है, दीज आर वेरी स्नो टाइप एरियाज, मींस विंटर में उनके यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है. अब स्नोफॉल होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि ढलाई वाला छत बड़ा डेंजरस हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्नोफॉल में ना कोई आवाज नहीं होता. अब मान लो रात को 9 बजे तुम सो गए और उस समय स्टार्ट हुआ स्नोफॉल और इससे कंटिन्यूअसली पूरी रात स्नोफॉल है, लेट्स से, फिर पता क्या होगा? ये जो छत है ना, इस पे स्नो जमा होता जाएगा और छत के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा. और स्नो इज लाइक आइस एंड इट्स नॉट सम वेरी लाइट थिंग. वो एक आध फ्लेक्स ऑफ स्नो लाइट होता है, लेकिन जब स्नो जमा होकर पूरा बर्फ जम जाएगा ना, तो कुछ ही घंटे में देखना अच्छा खासा मोटा परत बन जाएगा. अब उतने में तो इतना भारी होगा कि पूरा छत ही क्रैश करके बिल्डिंग गिर जाएगा. तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि छत ढलाई वाला मत बनाओ. छत कैसे बनाओ? ऐसे वाला, ऐसे वाला.
फिर उसके अंदर फ्लोर्स वगैरह अगर बनाना होगा, यानी छत जो है फाइनली ऐसे बना, सो दैट स्नोफॉल इज देयर एंड इट टेंड्स टू स्लाइड एंड फॉल। पर उसमें भी रिस्की होता है, कई बार ना फॉल ना करके किसी वजह से, मान लो फॉल ना करके यहाँ पे जम, एक बार जम गया तो वो तो पकड़ लिया, अब इसके ऊपर स्नो, यानी इवन ये भी रिस्की है। इसके लिए एडिशनली क्या करते हैं, जो थोड़ा सा रिच क्लास है वो क्या करते हैं, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल यहाँ पे लगा देते हैं, तो वो ऑटोमेटेड रख देते हैं कि जैसे ही ठंडा होगा ना तो इन दैट केस ये हीटिंग, तो उससे क्या होगा ना, छत हीटेड रहता है। तो अगर छत का मटेरियल अगर या जो भी सरफेस होगा हीटेड रहेगा, तो इन दैट केस क्या होगा, जैसे ही स्नोफॉल होगा और अगर थोड़ा जम भी जाए मान लो, तो वहां पे पिघल जाता है, पिघलते ही क्या होता है, वो लेयर ऑफ वाटर हो जाता है, तो वो ना सारा स्लिप करके नीचे आ जाता है। सो दिस आर द सेफ्टी मेजर्स डाला। लेकिन इसके चक्कर में एक प्रॉब्लम पता क्या होता है कि छत तुम ढलाई वाला नहीं कर सकते हो, ये वाला छत हमेशा थोड़ा सा कम मजबूत वाला। अब क्या है कि जब यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हो रहा है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, लेकिन अंदर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी इस छत पे क्या हो रहा है, इस छत पे यहाँ ज्यादा फोर्स है, ये देखो अंदर से, और ऊपर से कम प्रेशर है, ऊपर से कम प्रेशर है क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी हाई होने से, वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या ना प्रेशर कम हो जाता है, तो ये प्रेशर कम हो रहा है और अंदर से प्रेशर ज्यादा है, यानी इस छत को एक लिफ्ट मिल रहा है। अब अगर मान लो स्लो स्पीड पे वेलोसिटी है ये वाला, तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम है, तो यानी उतना ज्यादा लिफ्ट नहीं होगा कि पूरा छत को ही उड़ा ले। लेकिन उस साल थोड़ा सा विंड का स्पीड ज्यादा था, एक पर्टिकुलर ईयर में करीब आई थिंक उस समय जॉर्ज बुश थे, यानी है ना, मतलब जो भी है जॉर्ज बुश थे, यानी ओबामा के 2 पीरियड्स हो गए, फिर इधर ट्रम्प के हो गए, तो 12 साल, यानी करीब करीब 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस समय ये था, तो छत जो उड़ गई। वैसे जरा सोचो, मैं कभी इमेजिन करता हूँ कि मान लो मैं चादर वदर लेके बेड में बस लेट गया, मैं सोच रहा हूँ कुछ कल क्या करूंगा, नॉलेंदन ऐसे सीख मेरा छत उड़ के चला गया। So what kind of feeling it must have been for those people, I mean, but anyway, can't help it, ठीक है ना। Well, Aryanth has asked or rather given a comment on that is swing of ball is due to this only. You are right. Swing of the ball भी इसी वजह से ही होता है। वो देखना जो क्रिकेटर्स होता है वो देखना एक तरफ के बॉल को हमेशा शाइन करते रहते हैं। What is the reason? रीजन यही है कि एक तरफ को शाइन इसलिए करते हैं so that एक तरफ जो है ना एयर का स्पीड अलग हो जाएगा, जब बॉल को ऐसे करके डिलीवर करेंगे तो बॉल ऐसे से घूमता है, तो एक तरफ शाइनिंग है एक तरफ रफ है, तो एक तरफ का वेलोसिटी एक कम होता है एक तरफ का ज्यादा, तो दैट क्रिएट्स अ साइड प्रेशर डिफरेंस। इसलिए बॉल जब ऐसे सीम में पकड़ के ऐसे डिलीवर करते हैं और बॉल ऐसे करके घूमते हुए जा रहा है, तो देखना प्रेशर के कारण ऐसे करके एक ज्यादा एक कम, तो अब वो शाइनिंग को अंदर रखो या बाहर रखो उसके ऊपर, तो लाइक यू नीड आउट स्विंग और इन स्विंग, अकॉर्डिंगली वो शाइन को अंदर बाहर रखना पड़ता है। और जब डिलीवर कैसे होगी, instead of going like this will either go like this or will go like this, तो इन स्विंग आउट स्विंग ये सब चीजें, ठीक है ना। सर वेलोसिटी अलग कैसे होगी दोनों पार्ट की? नहीं वो एक्चुअली पता है क्या होता है, बताता हूँ। जैसे मान लो ये बॉल है ना, ये बॉल हो गया, ये सीम विंग जो भी है, अब एक तरफ मान लो शाइनिंग है तो ये स्मूथ हुआ, और एक तरफ मान लो रफ है, इतना रफ तो ऑब्वियसली नहीं होगा बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक रफ है, तो ऑब्वियसली जब ये ना ऐसे होता है, तो मतलब इसको सीम का जो प्लेन होता है, सीम मतलब जो बीच में धागे वाले, उसका जो प्लेन होता है और जो बॉल का डिलीवरी का प्लेन वो सेम रखा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ये स्मूथ है ये रफ है, तो ऑब्वियसली फिर इससे यहाँ का जो एयर का पैटर्न होगा और यहाँ का जो एयर का पैटर्न होगा वो अलग होगा, ये डिस्टर्ब होगा, ये थोड़ा स्मूथ होगा, तो देयरफॉर यहाँ का प्रेशर अलग हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर अलग होगा, तो देयरफॉर क्या होगा ना, एक साइडवेज फोर्स बनता है। इसलिए देखो एक बॉल को अगर ऐसे फेंको तो बॉल तो यूं सीधे नीचे गिरना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता है। देखा होगा कई बार अच्छा खासा बॉल मुड़ जाता है, और वही तो बेस बॉलिंग का कमाल है, और क्या है ना। तो स्विंग एंड ऑल, फिर बाद में तो और भी चीजें आ गया, रिवर्स स्विंग ये वो सब। चलो क्या, द मेन पॉइंट इज दैट कि दोनों के शाइन के डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है ना, बॉल स्विंग करता है, एंड दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, एंड दैट इज व्हाट कि एक तरफ का वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम होगा, और एक तरफ का वेलोसिटी कम होगा तो वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ
pressure difference, and that will create a force, sideways force. I mean, so apart from the ball going straight, it will also get deviated in the sides. बिल्कुल सही observation. और वो जो छत का मैंने बताया वो भी वही था. अच्छा, now you might say कि इसका इलाज क्या है? मान लो अगर कैलिफोर्निया के लोगों को अगर एडवाइस देना होता कि भाई तुम्हारा छत उड़ रहा है कुछ तो करो, तो वो क्या करते? The answer interestingly is that कुछ नहीं, इनके जो खिड़कियां है ना, ये खोल दो, ये खिड़कियां खोल दो, अगर दरवाजा है तो खोल दो. Now that's a little uncomfortable, I understand, कि पूरा तूफानी हवा चल रहा है अंदर से भी, but the benefit is that now that the wind will start blowing inside also fast, तो inside भी प्रेशर कम हो जाएगा. तो जब ये प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा ना, प्रेशर डिफरेंस अब काफी कम हो जाएगा. See, because it's the ultimate reason why the roofs got blown away was the pressure difference. तो अगर अंदर भी हवा स्पीड से हो जाए तो अब अंदर का भी प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऊपर भी प्रेशर कम, नीचे भी प्रेशर कम, तो यानी जो डिफरेंशियल होगा वो अब काफी कम हो जाएगा. डिफरेंशियल डिफरेंस. So in that case it won't be able to create such a lift that the roof will get blown away, है ना? So that's how. लेकिन जनरली हम लोग का रिस्पांस उल्टा होता है, अनसाइंटिफिक रिस्पांस होता है, एंड दैट इज कि जैसे तूफानी हवा, अरे धूल मिट्टी हो जाएगा, घर को बचाओ करके हम लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन दैट इज एक्चुअली द रिवर्स वन. वो खिड़की दरवाजा बंद करने से घर ज्यादा सेफ हो जाए, अनसेफ हो जाता है. बट एनीवे, दीस आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन. आई मीन, तो दैट वाज वन पॉइंट. अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने अभी डिस्कस किया कि वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम होता है, दैट इज इंटरेस्टिंगली यूज्ड इन अ डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ वेंचुरीमीटर. क्योंकि देखो, जरा सोचो, मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज कह रहा हूं, इज दैट कि एक चीज जरा सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इज दैट जब कोई नया एयरक्राफ्ट का डिजाइन होता है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, जो भी, उसका टेस्ट फ्लाइट कैसे होगा बताओ. और उसका टेस्ट फ्लाइट किससे कराओगे, ये भी सोचो. Now why I'm asking this question is because I have designed an aircraft and you are a pilot. You have a lot of experience, 10 years of flying experience, all said and done, good. But the thing is that why will you fly my aircraft? I have designed it and you don't even know, first time है तो पता नहीं क्या होगा, क्या पता है या नहीं, तो रिस्क रहता है ना. इसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है ना, इसका टेस्टिंग उल्टा करके किया जाता है. उल्टा मतलब समझो, पहली बात तो हम ये समझे कि हवाई जहाज उड़ते कैसे. हवाई जहाज उड़ते हैं बिकॉज ऑफ इट्स विंग. तो अगर मान लो ये वो है और इसका जो विंग है, इसका जो विंग का एरिया क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे होता है. सो दिस इज द विंग एक्चुअली, और उसके हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे हो जाता है. वैसे भी देख लीजिए कहीं पे भी, है ना, ऐसे ही होता है, एंड सो ऑन. नाउ दिस एरिया क्रॉस सेक्शन हैज बीन डेलिबरेटली डिजाइन्ड. क्यों ना, ये जो डिजाइन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है that the upper hump has a larger length and the lower hump has a slightly smaller length. इससे क्या होता है, the velocity profile, the relative velocity profile rather of the air will be like this. ये ऊपर से जाएंगे और ये आएंगे नीचे से, और इसका लेंथ L1 greater than L2 रखा जाता है. इससे क्या होता है, the average velocity of the air का जो लेयर है, relative velocity कह लो, velocity तो नहीं कहना चाहिए, average relative velocity of the air above the wing is more than compared to the velocity, average velocity or average relative velocity lower on the lower side of the wing. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी v1 मान लो, और यहाँ का अगर एवरेज वेलोसिटी v2, बोथ आर रिलेटिव सेंस में, तो इन दैट केस v1 is greater than v2. तो इससे क्या होगा, v1 will be less than v2. तो इसका जो विंग है उसमें क्या होता है, मैं थोड़ा एग्जैगरेटेड डायग्राम बनाऊंगा, बट यू विल गेट द सेंस आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे प्रेशर कम और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है. ऑब्वियसली इट्स एन एग्जैगरेटेड डायग्राम, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द लिफ्ट. दैट इज व्हाट क्रिएट्स द लिफ्ट इन द एयरक्राफ्ट. तो ये तो हो गया पहला चीज. चलो ठीक है, इस चीज को मैं भी ध्यान में रखूंगा. मैंने एक नया एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है, अब तुम एज ए पायलट क्यों रिस्क करो, है तो नहीं? V1 V2 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोला ना कि इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया जाता है कि इसका नीचे वाले पार्ट का लेंथ और ऊपर वाले पार्ट का लेंथ में ऊपर वाला हम्प ज्यादा होता है, तो इसका लेंथ ज्यादा है. तो तो टाइम जब हवा काट के जा रहा है तो यानी ऊपर वाले से जो एयर ऑफ का जो लेंथ ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा है. तो यानी समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि हवा यहाँ पे है, विंग यहाँ पे, थोड़ी देर बाद विंग यहाँ से निकल जाएगा तो हवा वहां पे वापस आ जाएगा. तो यानी इन द मीनवाइल क्या हुआ, हवा समझ लो कि रिलेटिव
मैं अगर विंग को फिक्स कर दूं तो रिलेटिवली क्या हो रहा है, हवा ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, तो नीचे वाले का लेंथ कम है, यानी उतने ही टाइम पे कम लेंथ कवर कर रहा है, यानी वेलोसिटी कम है, तो V2 कम है। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे वाले का वेलोसिटी कम है, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द लिफ्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे उतना ज्यादा लिफ्ट होगा। इसलिए ऐसे नहीं होता कि हवाई जहाज चलता है उड़ जाता है, नो, इट रिक्वायर्स अ रनवे। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट डिजाइन किया, जो आई थिंक टू स्टोरीड जो एयरक्राफ्ट आई थिंक शायद बोइंग ने डिजाइन किया था, पता नहीं उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ था, शायद उन्होंने उसको खत्म कर दिया, शायद अब नहीं उड़ा रहे हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट। तो वो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट और इतना जंबो एयरक्राफ्ट था, या अभी भी है, तो अभी भी है, मतलब कि इंडिया में लैंड करने लायक एयर स्ट्रिप ही नहीं, मतलब विद सम एक्स्ट्रा दिस थिंग, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए बड़े मुश्किल से उसको लैंड किया गया था। एंड अब जो एक एयरपोर्ट बन रहा है यूपी में, जेवर या कुछ ऐसे जगह पे, ऐसी कुछ नाम नहीं एयरपोर्ट का, वैसे तो नाम उन्होंने एयरपोर्ट का नोएडा के नाम से ही दिया है, बट जो जगह है वो जेवर या कोई ऐसी जगह है ग्रेटर नोएडा के पास, तो दे आर मेकिंग ए न्यू एयरपोर्ट। उसका रनवे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रनवे होगा, उसका रनवे सफिशिएंट होता है फॉर लैंडिंग दैट एयरक्राफ्ट, क्योंकि जितना भारी एयरक्राफ्ट होगा ना उतना ज्यादा लिफ्ट चाहिए होगा, उतना ज्यादा तेजी से एयरक्राफ्ट को उड़ाना पड़ेगा, और उसके लिए उतना ज्यादा बड़ा रनवे चाहिए। सो दीस आर ऑल कनेक्टेड थिंग्स। Here anyway, so the point that I was asking was that how do we really test these aircrafts before they start flying? The testing is done in a reverse way, and that is what? Now इन हवाई जहाजों को, जैसे ये हवाई जहाज हो गया, मान लो जो भी है, whatever, इनको बांध के रखते हैं ऐसे करके, यूं, ठीक है ना, they are attached to the ground with sensors मतलब फोर्स सेंसर, स्प्रिंग बैलेंस, कि भाई कहां पे कैसे फोर्स आता है, और सिस्टम उल्टा कर देते हैं। कैसे ना, इंस्टेड ऑफ दे रनिंग, इसको विंड टनल के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सो दिस कॉल्ड एज विंड टनल। इसमें उल्टा कर देते हैं, मतलब हवाई जहाज को स्टेशनरी रखते हैं, हवा को ब्लो करते हैं इसके अंदर से, तो उससे क्या होता है, अब ये विंग के ऊपर से भी जाएंगे ऐसे करके और नीचे से भी जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, तो इससे क्या होगा ना, इस हवाई जहाज में लिफ्ट क्रिएट होगा। जब लिफ्ट क्रिएट होगा तो ये जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं ना, ये सारे बताएंगे कि कितना लिफ्ट क्रिएट होगा, क्योंकि फोर्स क्रिएट होगा, है या नहीं। अच्छा, अब मान लो तुमने जो डिजाइन किया है उसके हिसाब से इस विंग में 100 न्यूटन जनरेट हुआ, इस विंग में 90 न्यूटन जनरेट होगा, चलेगा नहीं एयरक्राफ्ट, मतलब उड़ेगा नहीं। क्यों? इसका मतलब तो एयरक्राफ्ट ऐसे हो जाएगा, एक तरफ से 100 न्यूटन लिफ्ट क्रिएट हो रहा है, एक तरफ से 90 न्यूटन, ये तो चलेगा नहीं, यानी गड़बड़ है। तो यानी तुम फिर से उसको डिजाइन का जो भी पार्ट है वो ठीक करो। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट these aircrafts are flown reverse, means they're actually not flown, it's the wind which is passed and then that generates the lift, and therefore various velocities this that करके उसको टेस्ट किया जाता है। अब जरा सोचो, सपोज मैं विंड को वो कर रहा हूँ, ब्लो कर रहा हूँ, और तो यहाँ पे पावरफुल ब्लोअर्स रखे जाते हैं, उनके एंड ऑफ ब्लोअर्स, तो जिससे कि विंड ऐसे क्रिएट करते हैं। सपोज विंड का स्पीड हो गया 400 किलोमीटर पर आवर, तब जाके ये जितने भी फोर्स सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब जब हवाई जहाज को तुम उड़ाओगे तो उसका वेलोसिटी जब, आई मीन चलो 400 तो मैंने शायद ज्यादा बता दिया, जो भी है, मान लो 150 किलोमीटर पर आवर होगा, मान लो 150 किलोमीटर हवा का स्पीड है, तब जाके इन सेंसर्स में फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इनमें फोर्स जनरेट कब होगा ना, जब लिफ्ट उतना हो जाए कि हवाई जहाज के वेट से ज्यादा है, तो अब लिफ्ट अप होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब इफेक्टिवली। तो जरा सोचो, अगर एयरक्राफ्ट स्टेशनरी, विंड अगर 150 के स्पीड से जा रहा है, तब अगर लिफ्ट शुरू होता है, यानी जब तुम इसको रनवे में करोगे इसको उल्टा करना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट को 150 पे चलाओ, तब जाके इसका लिफ्ट होगा, प्लस उसके सेफ्टी फैक्टर भी, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ टेस्टिंग इज डन। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ विल आई नो that the wind is moving at 150 km per hour, 180 km per hour, और फॉर दैट मैटर इसी टाइप का टेस्टिंग सबमरीन्स में भी किया जाता है नहीं, सबमरीन में किया जाता है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। तो उनमें पानी का चाहिए, तो पानी किस वेलोसिटी से जा रहा है, दैट आल्सो आई नीड टू नो, एंड सो ऑन। सो देयर आर मेनी थिंग्स। आई मीन माय क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि ये परसेप्टेबल नहीं है, जैसे सपोज कोई व्हीकल यहां से वहां जा रहा है,
अगर मैं तुमको बोलूंगा इसका वेलोसिटी निकालो तो इट्स अ रिलेटिवली इजी टास्क, कुछ नहीं, 2 पॉइंट्स मार्क कर दो और एक स्टॉप वॉच ले लो, लेट द व्हीकल मूव एंड इट क्रॉसेस पॉइंट 1 तो घड़ी ऑन कर लो स्टॉप वॉच, और इट क्रॉसेस पॉइंट 2 स्टॉप वॉच बंद कर लो, तो टाइम आ गया, उसको जाके नाप लो, कितना आसान। पर विंड का वाटर का वेलोसिटी कैसे निकालो, है नहीं? तो उसके लिए the instrument that is used is called as venturimeter. The instrument that is used is called as venturimeter. Well, lots of comments have come. I don't know why. Let me see if there are. Om Patel has asked कि और न्यू बॉल के लिए क्या सीम पोजीशन ऑल्टर करते हैं? I'm not getting you. देखो, जो स्विंग बॉलर है उसको तो सीम पकड़ के ही बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स देखना, फील्डर से लेके सब लोग देखना बॉल को एक साइड से शाइन करते रहे, तो स्विंग तो उसी पे है, तो उसको सीम तो सीधा ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ध्रुव दास की एक आदमी ने ऐसे करा था, उसका बेटा उड़ गया था विंडो के बाहर। बेटा ही उड़ गया, ठीक है ना? बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इंसिडेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस। Okay. Even Aparna has given my answer. I mean, sorry, a message, and that is, आपने कुछ ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं. I was curious to know कि इसका रीजन क्या है. I could get the answer. चलो ठीक है. Knowledge is always a good thing. Om has asked कि न्यू बॉल तो बोथ साइड से शाइनिंग होते हैं. हाँ बिल्कुल. न्यू बॉल तो बोथ साइड से शाइनिंग होता है. तो लेकिन एक होता है नेचुरल शाइन जो बॉल का बना रहता है, मतलब न्यू बॉल. लेकिन उसके बाद उसको अलग से घिस-घिस के शाइन करते रहते हैं, तो लाइक इट्स अ रिलेटिव शाइन व्हिच मैटर्स, ठीक है ना? इट्स अ रिलेटिव शाइन व्हिच मैटर्स. चलो एनीवे, कमिंग बैक टू दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचुरीमीटर. तो वेंचुरीमीटर में क्या किया जाता है ना? वेंचुरीमीटर इज अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट. इट्स अमेजिंगली सिंपल इंस्ट्रूमेंट, एंड यू विल आल्सो बी सरप्राइज्ड कि अरे अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता तो यू विल आल्सो बी सरप्राइज्ड कि अच्छा इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. उसमें क्या होता है बताता हूं मैं. एक पाइप यूज किया जाता है ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, ऐसे. अच्छा, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन ए होता है और इसका भी ए होता है, तो थोड़ा सा ड्राइंग में वो है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना? इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इसका सपोज है स्मॉल या स्मॉल एरिया, ठीक है? तो बस ऐसे पाइप है, इसको पानी में डाल दो और इसके अंदर 2 ट्यूब्स रखा होता है, ऐसे कर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम लेवल पे इसके आउटलेट रहता है, एंड जस्ट डिप दिस इंस्ट्रूमेंट इन वाटर और व्हाटएवर इज फ्लोइंग, जनरली वाटर ही होता है. तो क्या होगा ना, वाटर अगर मान लो कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो ऐसे करके यूं, है ना? So the water besides the instrument or beside the instrument will flow with v only, no issues. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे v है और इस जगह पे हो जाएगा v डैश. लेकिन एक चीज है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हमारे पास, तो therefore v into a will be equal to v dash into small a. तो देखो v dash हमें पता चल गया, that is equal to va by e. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब जरा एक चीज बताओ, अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लेता हूं, एक 1 और एक 2, तो देखना इसके अंदर लिक्विड लेवल रहेगा कुछ. तो ये हाइट h1 हो गया सपोज, और इसका भी कुछ हाइट h2 होगा. तो सपोज इसका लिक्विड लेवल का हाइट h1 है और इसका भी कुछ h2 होगा. मैं दिखा नहीं रहा हूं h2 डेलिबरेटली, है ना? तो अब मैं जो है चलो नाउ लॉन्चिंग द पोल. ठीक है, और वो है कि कौन से ट्यूब में हाइट ज्यादा होगा, दैट इज द क्वेश्चन.
Okay. In 30 seconds, half of you have just answered. More answers required, बेटे. इतना कम आंसर क्यों होता है? 24 out of 40 have answered. I mean. Now it's 27, 28, 29. Chal, I think now let's not wait any further. Let's end the poll. And now I'm sharing the result. ठीक है? चलो देखो, the result that has come up is that which tube has higher height of liquid. तो इस पे भी liquid जाएंगे, बस मेरे पूछना ये था कि higher किस में होगा, दूसरे वाले में आपकी वीडियो पॉज। हाँ मालूम है, तो I'm not writing anything much, don't worry. So the point is that जो आंसर्स आए हैं उनमें से ज्यादा आंसर्स ट्यूब 2 का आया हुआ है और कम आंसर्स ट्यूब 1 का है, ठीक है? चलो ठीक है, so let's end the this thing now. Stop sharing results and now I will give the answer. देखो आंसर आया है कि दूसरे वाले का हाइट ज्यादा होगा, नहीं मतलब डोमिनेंट आंसर वही था, लेकिन ऐसे नहीं होगा. ट्यूब 1 का ज्यादा हाइट होगा और ट्यूब 2 में कम हाइट होगा. So this is H2 and this is H1. In fact, there will be a difference of height and that's what is interesting only. ये H है. अब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, पहली बात तो वो समझो ना. देखो यहाँ पे कम वेलोसिटी है और यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी. क्यों? यहाँ पे एरिया कम हो गया तो यानी वेलोसिटी ज्यादा. जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है. तो कम प्रेशर अगर होगा तो यानी एच रो जी कम होगा. तो ट्यूब 2 में हाइट कहाँ ज्यादा क्यों होगा? ट्यूब 2 में तो हाइट कम होगा ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है. V dash is more because the area is reducing और ये area is reduced. तो ये जो कैपिटल ए है और ये जो स्मॉल ए है ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, जो कि जब इंस्ट्रूमेंट तुम खरीदोगे तो उसमें पूरा कैपिटल ए का वैल्यू और स्मॉल ए का वैल्यू लिखा रहता है. या कह लो कि कैपिटल ए बाय स्मॉल ए का जो रेशियो होता है वो गिवन रहता है कि 5:3 है या 7:4 है या जो भी रेशियो होता है, दैट इज गिवन. अब इसका यूज कैसे होगा देखो. अब मैंने वो निकाल लिया H1 H2. एक्चुअली H1 H2 नहीं निकाला, मैंने H निकाल लिया, द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड्स. तो पहली बात तो डोमिनेंट आंसर इस बार सही नहीं था. चलो कोई नहीं, व्हाटएवर मिस्टेक इन द थॉट वाज, आई होप बाय नाउ दोज हु आर रॉन्ग मस्ट हैव करेक्टेड. चलो अब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा. तो यहाँ पे रोजेस तो सेम होगा, यानी P1 दैट इज एट 1 I mean प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू, रोजेस टर्म जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V डैश स्क्वायर. अब V डैश ना लिख के V इंटू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए, तो V इंटू कैपिटल ए बाय स्मॉल ए का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू द रिलेशनशिप. यानी V is equal to under root of 2 into P1 minus P2 by rho into A square minus A square into A square. ठीक है, तो ये इसका पूरा रिलेशनशिप आ गया. अब मैं एक काम करता हूं, ये जो P1 minus P2 यहाँ का that will be because of the difference in the heights, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. So that is nothing but H rho G. तो ये जो P1 minus P2 इसको लिखूंगा H rho G, तो इससे क्या होता है, रो खत्म. तो यानी 2 into H rho G into A square by, या एक काम करो A square by A square minus 1 कर दो, तो उसका एक फायदा होगा. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि as I said A by A का रेशियो दिया हुआ रहता है, तो A by A का रेशियो दिया रहता है, तो ये रेशियो निकल गया तो बड़े आराम से हो जाएगा. और रो कैंसिल कर दो तो चलो ये आ गया A by A का होल स्क्वायर minus 1. So that is going to be the velocity. अच्छा, अब तो A स्क्वायर खत्म हो गया है ना, तो 2GH. यानी इंस्ट्रूमेंट को रखो, थोड़ी देर देखना लिक्विड ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके फिर देखना लिक्विड स्टेबलाइज होता है. तो देखना वो जो ट्यूब में हाइट्स होता है ना वो स्टेबलाइज हो जाता है. उस समय हाइट का डिफरेंस H होता है और वो डिफरेंस को यहाँ लगा दो G, और A by A तो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, that will be given in the instrument manual itself, and therefore you will be able to get the velocity of the flowing liquid, and the instrument is going to give me that value. ठीक है, चलो. So it was a very simple instrument.
थोड़े से कैलकुलेशंस है, बट दैट इज आल्सो लिमिटेड कैलकुलेशन। कैपिटल ए बाय स्मॉल ए के वैल्यू ना जब इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे ना तो उसके दिया रहता है कि इसके अंदर क्या रेशियो है जो भी है, so that would help us in finding out the velocity of the flowing. इसमें विंड ब्लो करी है फिर लिक्विड? हाँ ये विंड ब्लो कराना है इसमें? विंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। विंड में ये वाला इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं यूज हो सकता है। मैं रीजन बताता हूँ। रीजन इज दैट विंड में ना रो अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे ना तो विंड का डेंसिटी भी बदल जाता है। इसलिए विंड में यही थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। विंड के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसमें इनएक्यूरेसीज आ जाएंगे। लिक्विड्स के लिए कंप्लीटली इफेक्टिव होता है और सारे लिक्विड्स के वेलोसिटी मोस्टली इसी से निकाला जाता है। ठीक है ना? विंड में दिक्कत क्या है ना कि एज आई सेड उसमें डेंसिटी का भी पैरामीटर आ जाता है, तो यहाँ का जो एयर का डेंसिटी होगा ना और यहाँ का जो एयर का डेंसिटी होगा ना वो देखना अलग हो जाएगा। ये वेलोसिटी बदलते ही ना डेंसिटी भी बदल जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। चलो एनीवे विंड का डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जब हवा का फिर वेलोसिटी आया कैसे? जो निकालना तो मैं तुमको वही था ना कि हवा का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब नहीं उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट तुमको वेलोसिटी नहीं देगा, इंस्ट्रूमेंट तुमको हाइट देगा, है ना? ये डिफरेंस ऑफ हाइट दे देंगे ये वाला। और उससे देखो सब कुछ तो नोन है, ए बाय ए तो गिवन होगा, तो ये तो नोन हो गया ना। अब पता क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, बता देता हूँ। व्हाट दे डू इज दैट दे आल्सो गिव अ मैनुअल अलोंग विद द इंस्ट्रूमेंट कि अगर ये हाइट की भी देखो ये सब फिक्स्ड क्वांटिटी है, 2g s² सब फिक्स्ड क्वांटिटी है, h के साथ ही तो वेरिएशन है ना। तो व्हाट दे डू इज दैट वो h के हिसाब से वेलोसिटी के वैल्यूज दे देते हैं, मतलब I mean calculate करके they know the calculation. I mean you also know the calculation once you know capital A and small a. You can also do it yourself. इससे चाहिए प्रिंटेड मैनुअल दे देते हैं कि भाई अगर हाइट 2 मिलीमीटर हुआ तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है, 2.5 मिलीमीटर हुआ तो इतना, 3 मिलीमीटर पे इतना, 4 मिलीमीटर पे इतना, 5 मिलीमीटर। सो जस्ट लुक एट द हाइट डिफरेंस। मान लो हाइट डिफरेंस है 17 मिलीमीटर, तो देख लो 17 मिलीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है। सो दैट इज आई थिंक समथिंग दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट। वो तो एक मैनुअल बना दो, मतलब मैनुअल ना बना तो खुद ही बना सकते हो। क्या है इसमें एक्सप्रेशन, सब कुछ तो नो नहीं, कैपिटल ए बाय स्मॉल ए तो नोन होगा। अच्छा कैपिटल ए बाय स्मॉल ए अगर ना भी दिया है, वैसे तो दिया रहता है इंस्ट्रूमेंट में, बट ना भी दिया तो वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर्स एंड फाइंड इट आउट। ठीक है ना? और अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर एंड ऑल। चलो उस पे तो कभी और डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल्स का मौका मिलेगा कि इंटरनल डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। सो दैट्स अनदर चैलेंज व्हिच वी विल डिस्कस सम अदर डे जब हम लोग स्कूल्स रीओपन करेंगे। ठीक है? चलो एनीवे वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम टुडे बिकॉज़ अनदर क्लास इज गोइंग टू बी लाइंड अप नाउ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल फ्लूइड्स यानी विस्कस फ्लूइड्स। सो टुमारो आवर टॉपिक विल बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।